Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to dear students. Topic is Unit Histology and Morphology, Class 11th Zoology. तो आज का जो टॉपिक है सब टॉपिक एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू ये यूनिट है हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी में, पहले हमें टिश्यू पढ़ना है। तो एनिमल टिश्यू ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू क्या चीज़ है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। Tissue may be simple or compound. It is the shortest method, or the perform definition. Tissue may be simple or compound. Shortest and simple definition. Simple tissue. What is simple tissue and what is compound tissue? Simple tissue, it is a group of cells similar in form. That is group of cells similar in form, structure and development. Similar in form, structure and development. Origin, development, origin, performing specific function. Performing specific function is called simple tissue. ये जो टिश्यू है may be simple or compound. What is simple tissue? A group of cells similar in form, structure, development, origin, performing a specific function is simple tissue. And compound tissue, it is a group of cells different in form. इसका opposite है group of cells different in form, structure, different in form, structure and development. Form and development, origin performing specific function, performing a specific function. Budget coined the term tissue. BICH 80, name of the scientist, coined the term tissue. आ गया दो टाइप के टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू. It is similar in origin, form, structure and development. It is called a simple tissue. Compound tissue, group of cells different in form, structure and development, origin performing a specific function. तो बिचत, name of scientist coined the term tissue. अब इसके बाद types of tissue हैं. On the basis of function, tissue are of 4 types. The function tissue करते हैं. इसके 4 types हैं. First of all, epithelial tissue, that is covering of a body. The skin or plants, animals, covering. Number 2, muscular tissue, contractile. Here the veins, vessels, arteries, water going, xylem or phloem. Number 3rd is connective tissue, that is supporting, supply of different types of minerals, blood, plasma. And nervous tissue, controlling, system of controlling in our body, animal body, that makes by the help of nervous tissue. तो ये 4
किस्म के टिश्यू हमें इस क्लास में पढ़ने हैं। इसके आप डिफरेंट किस्म देखेंगे अलग अलग। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू जो कवरिंग ऊपर होती है, मस्कुलर टिश्यू, कंट्रैक्टाइल, कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग एंड नर्वस टिश्यू, कंट्रोलिंग। तो अब पहला हमें पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यू क्या है। एपी अपॉन थेलिया निपल, nipple like structure upon the cell or a living body. It grows upon other tissue, that is epithelial tissue, which grows upon other tissue. ये दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। This tissue covers the outer surface of all the organs of the body and also lines the hollow cavity internally. हर एक सेल, हर एक लिविंग ऑर्गन या हर एक ऑर्गन के ऊपर एक कवरिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू की। This tissue covers the outer surface of all the organ of the body and also line the hollow cavity internally. और इसके बीच में अंदर से एक hollow cavity डाल दिया जाता है एपिथेलियल टिश्यू और ऑर्गन के दरमियान एक hollow cavity बीच में होती है। तो अब इसका स्ट्रक्चर जो है एपिथेलियल टिश्यू का, epithelial tissue cells are arranged in one or more layers, that is one or more layers, एक लेयर और दूसरी लेयर। कभी आप आगे पढ़ेंगे, कभी ये 3 लाइनें बनाती है। अगर हम प्लांट्स का लेंगे, इसकी जो कवरिंग है वो ब्रॉड प्रोटेक्टिव होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कवरिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू की। जितनी ये ज़्यादा लेयर्स बनाती है इतनी मजबूत कवरिंग होगी। Arranged in one or more layers or compact arranged, so there is no intercellular space between them. एक सेल के दरमियान दूसरे के सेल के दरमियान कोई स्पेस नहीं है। ये एक टिश्यू है, दूसरा इसके साथ कंपैक्ट है। जितनी लेयरें बनाते हैं एक दूसरे के साथ कंपैक्ट हैं। No intercellular space between the 2 layers of the epithelial cells. Between the cells of the lowermost layer rest on the non-cellular basement membrane, which is formerly mucopolysaccharides and collagen fibers secreted by the underlying tissue. Epithelial cells retain the power of division through layer. It retains the power of division throughout the layer. Power of division, cell division. Between the membrane, which is formerly mucopolysaccharides and collagen fibers secreted by underlying tissue of epithelial cells, retain the power of division throughout life. Retain the power of division of the cell throughout the life. अब इसकी फंक्शन है, एपिथेलियल टिश्यू की फंक्शन क्या है? Function of epithelial tissue. First of all, it is very important for the covers the whole organs of body or cell. It covers and protects the underlying tissue for mechanical and chemical injury. बचाता है, अंदर की जो सेल को बचाता है, ऑर्गन को बचाता है मैकेनिकल एंड केमिकल एनर्जी, केमिकल इंजरी इससे बचाता है सेल को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट लेंगे, प्लांट के ऊपर जो बाहर से इसके रूट्स में या इसके स्टेम में जो कवरिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू की लगी होती है, जितनी मजबूत है, अगर प्लांट को कोई भी काटने की कोशिश कर रहा है, पहले इसको बहुत सेव करने की कोशिश कर रहा है, या कोई जानदार इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो इसको सेव कर रहा है, मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी से बचाता है। अगर हम लेंगे हमारी स्किन जो होती है, एनिमल की स्किन, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, ये भी पहले बहुत बचाव कर रहा है इंजरी से। अब दूसरा है मैकेनिकल केमिकल इंजरीज एंड एंट्री ऑफ जर्म्स इनसाइड द सेल
और इनसाइड द बॉडी, इसके लिए प्रोटेक्ट करता है। इट फॉर्म्स एक्सोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक स्केल, फीदर्स, एक्सोस्केलेटल पार्ट्स, जो बाहर से पार्ट्स होते हैं इसमें स्केल्स होते हैं जैसे मछलियों में, या फीदर्स होते हैं बर्ड्स में, नेल्स होते हैं, क्लाउज होते हैं, ये सब चीजें नम चासा क्लाउज से आसान, या हॉर्न्स होते हैं, हूव्स होते हैं, ये हर एक चीज एपिथेलियल टिश्यू के से निकलते हैं, इनके साथ टच करके रखते हैं। जो पान सवान एपिथेलियल टिश्यू अत सवान नमस्ते युस जन तीर इन सारे चीजन पान सवान टच कर। इट इन्वॉल्व्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। तीसरा ये इसकी फंक्शन तीसरा है, इट इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मछली से लें मछली, तो बाहर से जिस ऑक्सीजन आती है इसके ऑक्सीजन, या हम फ्रॉग लेंगे जो ये स्किन लेता है, वो इसी स्किन से ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, या मछली कोई इसी टाइप के आपने जो एनिमल्स पड़े हैं जो स्किन से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ जो गैस होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी, ये भी एपिथेलियल टिश्यू ये काम भी करा है। ऑल्सो इट इन्वॉल्व्ड इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। चौथी चीज अहम फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट्स। जैसे हम लेंगे, अगर हमारा स्वेट होता है हमारी बॉडी में, अगर अर्क नहीं सारी बॉडी में के, तो इंसान गए बीमार। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट्स जो हमारी बॉडी से बाहर आते हैं, या किसी ओपनिंग से या स्किन के जो मसामस होते हैं छोटे लकट लकट तमें ज़्यादा मज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट या कुछ ओपनिंग नश नबर, तो अत मज एपिथेलियल टिश्यू लायर अत एक्सचेंज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट नबर करनस मज सानी बॉडी मज वेस्ट नीरान यह काम कर एपिथेलियल टिश्यू। जोर फंक्शन इम्पार्टेंट जोर फंक्शन गई चीज इट कवर्स एंड प्रोडक्ट्स अंदर टिश्यू एंड केमिकल मैकेनिकल एनर्जी अम नश बचावान। दोम चीज इट परफॉर्म एक्सोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक स्केल्स, एक्सोस्केलेटल एलिमेंट कुन जानवरस कुन लिविंग बॉडी अमन प्रोटेक्ट कर अमी मज नीरान। त्रेम चीज इट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन बॉडी ब्लड सेल्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यह थ्रो ग एपिथेलियल टिश्यू सती यह ब्रोकन ब्रोकन। एंड चूरम इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अत मज इन्वॉल्व ग एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल सानी बॉडी मज नीरान नबर, अत मज एपिथेलियल टिश्यू इन्वॉल्व ग इम्पार्टेंट फंक्शन। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इंशाल्लाह इनको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इसके कितने टाइप्स हैं। तो आज का वीडियो यही खत्म हुआ है। थैंक यू।